تم مکمل بھیگ چکی ہو، تمہارا یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ ساحر کی آواز پر نور حانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ساحر نے اسے کیا کہا ہے۔ جی؟ حانم نے پھر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اتنی خوشی ہے نکاح کی کہ اس موسم کی بارش میں بھیگ رہی ہو؟ ساحر خود کو باور کروانے کی غرض سے بولا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے الفاظ سے وہ حانم کو کتنی بڑی اذیت دے چکا ہے۔ نکاح؟ حانم نے زیر لب کہا۔ ہاں نکاح، سوری، مجھے دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا، نہیں تو تمہاری خوشی میں ضرور شرکت کرتا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اس کے غم سے بے خبر بول رہا تھا ساحر سائیں۔ جانے کیا تھا اس کی پکار میں۔ ساحر ساکت ہوا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کبھی ہم سے غافل نہیں ہوئے ساحر سائیں۔ خیر، ویسے نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے، خیر مبارک۔ یہ کہہ کر خاموشی سے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ساحر پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ ایسا کیا ہوا ہے جو حانم اس پر اتنا گہرا طنز کر گئی تھی؟ کوئی صلح کرا دے زندگی کی الجھنوں سے۔ بڑی طلب لگی ہے ہمیں آج مسکرانے کی۔ پیرس، ہے یار کیسا ہے تو، اور کب آیا؟ مجھے ابھی ابھی اپنے پی اے سے پتا چلا۔ زارون آ کر زاویار کے گلے ملا۔ میں ٹھیک ہوں، میں کل ہی آیا ہوں۔ اچھا، ڈائریکٹ پاک سے پیرس؟ اور سنا بھابھی کیسی ہیں؟ نہیں، پاک سے آئے 1.5 ہفتہ ہو گیا، لندن میں تھا، کل ہی پیرس آیا ہوں۔ کیا 1.5 ہفتہ؟ کیا نکاح کے اگلے دن ہی اٹھ کر آ گیا تھا؟ زارون نے 2 کپ کافی آرڈر کی اور اس کے پاس آفس میں لگی گلاس ونڈو کے پاس آ کر مزاحیہ انداز میں کہا۔ نہیں، نکاح والی رات ہی۔ زارون نے چونک کر زاویار کے چہرے پر دیکھا، مگر اسے مذاق کی کوئی رمق نظر نہیں آئی۔ تو کیا کہہ رہا ہے زاویار؟ مطلب اتنی بھی کون سی آفت آ گئی تھی جو تو اپنی نکاح والی رات ہی واپس آ گیا؟ کیا سوچتی ہوں گی بھابھی؟ وہ تیری بھابھی نہیں ہے، آف کورس وہ میری بھابھی ہے، مگر اب نہیں ہے۔ زارون زاوی کی فضول بات پر جھنجھلا گیا۔ کیا مطلب؟ زاویار ریلیکس انداز میں کرسی سے ٹیک لگائے گھونٹ گھونٹ کافی پی رہا تھا، جبکہ زارون مسلسل آفس روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ تجھے اب میں کیا کہوں؟ کمینے، تو اسے طلاق دے آیا ہے؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے تو زاویار؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ آغا سائیں نے میری انا کو للکارا ہے، انہیں کیا لگتا ہے میں ان کی دولت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا؟ زاویار بھی آپے سے باہر ہو کر چیخا تھا۔ زاویار کو وہ دن یاد آیا جب آغا سائیں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے گاؤں کا سردار بنانے کے ساتھ اس کا نکاح اس کی کزن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سردار والی بات پر وہ خاموش ہو گیا، حالانکہ اس کا مستقبل میں گاؤں میں رہنے کا کوئی موڈ مزاج نہیں تھا، پھر بھی وہ فی الحال خاموش ہو گیا تھا۔ مگر دوسری بات پر اس نے آغا سائیں کو صاف منع کر دیا تھا۔ اس نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور ابھی سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میر زاویار سائیں، کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ آغا سائیں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ سوال کیا تھا۔ نہیں آغا سائیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں… تو پھر انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی اسے ٹوک کر کہا تھا۔ میں ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں آغا سائیں۔ کیوں؟ تم کوئی دودھ پیتے بچے ہو؟ ان کا تن سے بڑا تیر اسے چبھا تھا۔ ماشاءاللہ سے پڑھ لکھ لیے، اللہ سائیں کے کرم سے اسی ہفتے تمہیں گاؤں کی ذمہ داری بھی سونپ دیں گے، اس لیے کوئی معقول وجہ بتاؤ۔ آغا سائیں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ آغا سائیں، کیا ہے؟ نہیں کرنی نا مجھے شادی، بغیر معقول وجہ کے تم مجھے انکار نہیں کر سکتے میر زاویار سائیں۔ اور دوسری بات، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی ہے کہ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں؟ ابھی بس ہم تمہارا نکاح اپنی نورے کے ساتھ کریں گے، رخصتی ابھی نہیں ہوگی۔ صرف نکاح؟ زاویار نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ جب میں کسی کو پسند نہیں کرتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے خاندان کی لڑکی ہے، اچھی ہی ہوگی۔ اس نے دل میں سوچا۔ آغا سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہمیں تم سے یہی امید تھی میر زاویار سائیں۔ آغا سائیں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ کل اس کا نکاح تھا حانم سے، جس سے ملے اسے 10 سال ہو گئے تھے۔ وہ اسے اتنی خاص یاد بھی نہیں تھی۔ حویلی میں موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہونے والی منکوہا سے نہیں مل سکا۔ چلو کل ہی سہی، اتنا شوق اسے بھی نہیں تھا ملنے کا۔ اپنے دوست سے فون میں بات کرنے کے بعد وہ لان میں لگی کرسیوں میں ایک پر بیٹھ گیا۔ اپنی بزنس پلان سوچ رہا تھا جب اسے صنم اور سونیا کی سرگوشیاں سنائی دی۔ ان کی سرگوشیاں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں، خاص طور پر حانم کا ذکر سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہاں حانم، کہاں زاویار، وہ ان پڑھ اور وہ پڑھا لکھا۔ اور بہت سی باریں زاویار کا دل بدگمان ہونے لگا۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھتا کہ سونیا کی اگلی بات پر اس کے قدم تھمے۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کمی ہے جو آغا سائیں اسے زاویار سائیں کے گلے کا ڈھول بنانا چاہتے ہیں۔
वो लोग तो वहाँ से चली गई थी, मगर ज़ावियार का दिल मुकम्मल बेजार और बदगुमान कर गई थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं किसी फूहड़ लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं कैसे उसे अपने सोशल और बिजनेस सर्कल में इंट्रोड्यूस कराऊंगा? मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे शाना बशाना होकर चले। ये सिली हानिम नहीं, मैं अभी आगा साईं से बात करता हूँ। अभी वो आगा साईं के कमरे में जाता कि रास्ते में रोती उसे सोनिया मिल गई। क्या हुआ सोनिया, रो क्यों रही हो तुम? रहने दे, मैं ठीक हूँ, फिर भी बताओ तो सही। ज़ावियार साईं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कुछ नहीं हुआ मुझे। सोनिया, ज़ावियार के उसके बार बार इनकार करने पर चिढ़ चढ़ी थी उसे। वहाँ से जाने लगा जब सोनिया बोली, मैं हानिम को मेहंदी लगाने गई थी तो उसने मुझे झटक कर कमरे से निकाल दिया। कह रही थी कि उसके पास इन फजूलियात का वक्त नहीं। पहले तो ज़ावियार का दिल किया कि वो अंदर जाकर देख ही ले उस बदतमीज़ लड़की को, मगर अपना इरादा बदलता वो आगा साईं के कमरे की जानिब बढ़ा। आओ ज़ावियार साईं, बताओ कैसे आना हुआ? आगा साईं, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आगा साईं मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। आगा साईं, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। अपनी बात कहकर उसने आगा साईं की तरफ नज़र उठाई। वो बिल्कुल स्पार्ट अंदाज में उसी को देख रहे थे। अपने कमरे में जाकर आराम करें मीर ज़ावियार साईं, कल का दिन खासा थका देने वाला होगा आपके लिए। गांव के बड़े लोग भी आपसे मिलकर आपको निकाह की मुबारकबाद देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आगा साईं, आप अपनी ही बोले जा रहे हैं। ज़ावियार की आवाज़ तेज़ हुई। आवाज़ नीची रखें मीर ज़ावियार साईं, क्या आप भूल गए हैं कि आप किससे मुखातिब हैं? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ। गांव के जालिम सरदार से, जिन्हें बस अपने ही फैसले सुनाने आते हैं। दूसरों की ज़िंदगी जाए भाड़ में। लफ्ज़ों में गुस्ताखी शामिल हुई। कौन सी ज़बरदस्ती? तुमसे पूछ कर ही हमने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। तुम अब आज बता रहे हो जबकि कल निकाह है। हाँ तो अब मैं ही इनकार कर रहा हूँ ना, नहीं करूँगा मैं उससे शादी। ज़ावियार साईं, तमीज़ से, हमने तुम्हें छूट दी है तो हम तुम्हें बांध भी सकते हैं। कल तुम्हारा हानम से निकाह होगा, यही हमारा आखिरी फैसला है। उसकी मुसलसल बदतमीज़ी पर आगा साईं को तायश आया। मैं भी देखता हूँ आप कैसे मेरा निकाह करते हैं उससे। मुकाबिलाना का बुत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। अगर तुमने हानिम से निकाह ना किया ना तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। ज़ावियार के कदम थमे। मीर हाकिम साईं के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ मैं, क्या करोगे खाली हाथ? ज़ावियार की अना पर गहरी चोट लगी थी। वो उनके सामने बेबस हुआ। मीर ज़ावियार नाम है मेरा, जिसने कभी हारना नहीं सीखा। निकाह के होते ही हाकिम साईं के चेहरे से फूटती मुस्कुराहट देख ज़ावियार तंजिया हंसा। उसे तलाक देते वक्त तेरे दिल में एक दफ़ा भी उस लड़की का ख्याल ना आया? एक दफ़ा भी तेरे ज़मीर ने तुझे नहीं झिंझोड़ा कि तू अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है? उसे खुद साख्ता जंग में, अपने दादा से खुद साख्ता जंग में एक लड़की के जज्बात को रोंदने जा रहा है। तू चाहता है मैं यहाँ से चला जाऊँ? ज़ावियार ने कुर्सी से उठ खड़े होकर अपने कोट को झाड़ते हुए खफगी से पूछा। खैर, अब जो होना था वो हो गया। तू बता, अब मुझसे क्या चाहता है? नाराज नाराज लहजे में वो बोला, मैं तेरे बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ मैं यार। मगर क्या? ज़ावियार ने आईब्रो उचकाए। तू जानता है ना इस कंपनी का मैं इकलौता ओनर नहीं हूँ, मेरा दोस्त है 50% के शेयर्स का मालिक। हाँ तो तुम तो अपने शेयर्स के मालिक खुद हो ना। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बता दो, मैं कुछ और देख लेता हूँ। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो जान हो मेरी, मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ। ओके बाय। हानिम नहाकर बाहर निकली। अपने बाल सुखा रही थी जब सनम दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आई। आओ सनम, बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको आगा साईं बुला रहे हैं, स्पार्ट से अंदाज में कहती वो वहां से चली गई। पीछे हानिम उसका रूड रवैया ही देखती रह गई। इसे क्या हुआ है? फिर सर झटक कर आगा साईं के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां सब बड़ों को देख उसे ताज्जुब हुआ। आओ नूरे। दादा साईं की नर्म आवाज़ सुनकर वो सबको सलाम करती अपनी मामा साईं के पास सोफे पर जाकर बैठ गई। हमें माफ़ कर दो हानिम बच्चे, हमें नहीं पता था कि ज़ावियार कोई ऐसी हिमाकत करेगा। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी मम्मा साईं, ताया साईं, मैं जिसकी गलती होती है उसी को सज़ा देने की कायल हूँ। आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। हानिम की बात पर समीना बेगम साईं ने उसके चादर से ढके सर पर प्यार किया। जीती रहो मेरी बच्ची। दादा साईं, आपने मुझे बुलाया था? हानिम आगा साईं से मुखातिब हुई। नूरे,
तुम ने कल कहा था कि तुम हमें एक ही शर्त पर माफ़ करोगी, जब हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। नूरे, तुमने कहा था कि तुम अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हो। क्या मांगना चाहती हो नूरे? मैं फ्रांस से अपना MBA पूरा करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बिजनेस वूमेन बनूँ, और इसलिए हरगिज़ नहीं कि मैं अपने आगे से पेंडू का धब्बा हटाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि ये मेरे बाबा साईं की ख्वाहिश थी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को माफ़ कर दूँ तो ये है मेरी शर्त। मगर हानिम साईं, तुम अकेली? जावेद साईं ने ताज्जुब से आगा साईं को देखा। चाचू साईं, बदतमीज़ पेंडू, और अब तलाक याफ्ता जैसा टैग भी तो अकेले ही बर्दाश्त कर रही हूँ ना। हमें मंजूर है। आगा साईं की रजामंदी पर सभी खामोश हो गए। तुम्हें महीना तो इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारा वीज़ा और यूनिवर्सिटी का दाखला डॉक्यूमेंट्स पूरे होने में, उसकी फिक्र मत करें। मैं ऑनलाइन एंट्री टेस्ट कर चुकी हूँ। बस वीज़े के लिए भी अप्लाई कर दूंगी तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो भी हो जाएगा। वो तो सब कुछ जैसे तय करके बैठी थी। अब साहिर को जब हानिम की तलाक का पता चला तो उसे समझ नहीं आया वो रोए, खुश हो, या हानिम के दुख में अफसुर्दा। और फिर उसके फ्रांस जाने वाली बात, और वो भी अकेले। साहिर कुछ सोचता हुआ आगा साईं के कमरे की जानिब बढ़ गया। और सुनाओ कजन साईं, सुना है तुम फ्रांस जा रही हो पढ़ाई करने के लिए? सोनिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे क्या फर्क पड़ता है, पेंडू का टैग तो लग गया ना। सोनिया बहुत धीमी आवाज में बोली, जो सिर्फ हानिम को ही सुनाई दी। हाँ हानिम, तुम फ्रांस जा रही हो, मगर तुमने लंदन में नहीं अप्लाई किया था? अलीना बोलते बोलते चुप हुई। ओह, तो पहले से ही प्लानिंग हो रही थी। हानिम ने सोनिया को फरामोश करके सनम को पुकारा। क्या कर रही हो सनम? आपसे मतलब? सनम ने लठमार अंदाज में कहा। सनम, ये कैसे बात कर रही हो? अलीना ने सनम को डपटा। क्या गलत कहा है अदी साईं? इनकी वजह से इतने सालों बाद लाला साईं आए थे, वो वापस चले गए, पता नहीं अब कब आएंगे। मामा साईं रात को रोते हुए उन्हें याद करती रहती है। सनम, बेयकीनी से कहती हानिम वहां से चली गई। इतने लंबे सफर से वो फ्रांस के शहर पेरिस में आई थी। जिस्म थकन से चूर था। अपने पर्स से प्लेट के दरवाजे की चाबी निकाली और दरवाजा खोला। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। नफासत से सजा 2 कमरों का फ्लैट, 7 अटैच बाथ, टीवी लाउंज की लेफ्ट साइड पर किचन और राइट साइड पर ग्लास वॉल लगी थी। वो ग्लास वॉल शायद टेरेस पे खुलती थी। ये अमेरिकन तर्ज से बना हुआ फ्लैट उसे बहुत पसंद आया था। उसका अपना सारा सामान और अटैची वगैरह टीवी लाउंज में रख दिया गया था। वो टेरेस की तरफ बढ़ी। सामने का मंजर बहुत खूबसूरत था। आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी और सुरमई चादर ओढ़े हुए आईफल टावर की बुलंदोबाला इमारत खूबसूरती का शाहकार फेरी लाइट से सजा हुआ था। नूरे हानिम बिल्कुल मबहूत होकर उस मंजर को देख रही थी। पेरिस की हसीन गलियों, तुम्हें मीरों की नूरे हानम असद हाकिम अपना शर्फ बख्शने आई है। इतना कहकर वो खिलखिलाई। नूरे हानिम ने जहां अपने सामने के मंजर को मबहूत होकर देखा था, ठीक ऊपरी फ्लैट के टेरेस पर खड़े साहिर ने उसकी खिलखिलाहट को मबहूत होकर देखा था। ग्लास वॉल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठे वो चाय की चुस्कियां लेते बाहर के मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा था। पेरिस, जिसे मोहब्बत का शहर कहते हैं, उसे आज से पहले कभी इतना प्यारा नहीं लगा था। फ़ोन की रिंग पर साहिर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ, तू सुना? अच्छा चल, मैं 4 बजे के करीब आऊँगा, फिर बात होगी इस बारे में। ओके। नीचे वाले फ्लैट से धमाके की आवाज़ पर साहिर के हाथ से चाय का कप ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हुआ। मिनट के 1000वें हिस्से में वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। हानिम, दरवाज़ा खोलो हानिम, क्या हुआ है? दरवाज़ा खोलो। शिट डैम इट, चाबी। साहिर को समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर गुजरे। डुप्लीकेट चाबी उसकी अलमारी में थी। इससे पहले कि वो वापस ऊपर मुड़ता, हानिम के फ्लैट का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। साहिर पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर का मंजर देख उसका सर चकरा गया। ये सब क्या है? साहिर ने हानिम की हालत को देखा, जिसके चेहरे और बालों पर जगह जगह खुश्क मैदा लगा हुआ था, और एप्रन की हालत तो नाकाबिले बयान थी। साहिर अपने दिल की तेज़ तरीन धड़कन अपने कानों से सुन सकता था। वो कितना डर गया था। मुझे भूख लग रही थी, हानिम ने होंठ लटका कर कहा। साहिर को बैक वक्त उसकी हालत पर गुस्सा, प्यार और हंसी सब आया। ये सब क्या है हानिम? और ये धुआं? साहिर किचन की तरफ गया, जहाँ से सुरमई धुआं निकल रहा था। हाँ, तो जब आप मेरे साथ आ ही गए थे तो आपको नहीं पता था कि मुझे खाना नहीं बनाना आता? मेरी भूख का एहसास किया था? पता भी है कब से भूख लग रही थी, खुद ही कुछ करना पड़ा। दिख रहा है क्या कुछ किया है तुमने? हल्की आवाज़ में वो बुड़बुड़ाया, जिसे हानिम के खूबसूरत कानों ने सुन लिया। इस सब के जिम्मेदार आप खुद हैं। हानिम और खुद पर इल्ज़ाम बर्दाश्त कर ले? हरगिज़ नहीं। मैं वो हैरान हुआ, मगर कहा कुछ नहीं। क्या पता वो और कौन सा इल्ज़ाम लगा दे। साहिर ने माइक्रोवेव चेक किया, जो अल्लाह ही हाफिज़ हो चुका था,
क्योंकि हानिम मैडम ने ना सिर्फ स्टील का चमचा बल्कि पूरा का पूरा स्टील का सांचा माइक्रोवेव में फुल पावर के साथ लगाया हुआ था। तकरीबन घंटा लग गया था साहिर को सब दोबारा ठीक करते हुए। हानिम मज़े से किचन में पड़ी कुर्सी पर चौकड़ी मारकर बैठी आइसक्रीम खाने का शुगल फरमा रही थी। ये कब ठीक होगा? आइसक्रीम खाने के बाद वो फिर साहिर के सर हुई। ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वेल्डर को ही बुलाना पड़ेगा। ओह, हानिम ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे वाकई अफसोस हुआ हो। मगर मुझे भूख लग रही है, हानिम ने अब के आहिस्ता आवाज़ में कहा। साहिर को पहली बार अंदाज़ा हुआ कि हानिम भूख की कितनी कच्ची है। अच्छा तुम चेंज कर लो, आओ बाहर जाकर लंच करते हैं। साहिर साईं टिशू से अपने स्याही माइल हुए हाथों को साफ करते बोला। मैं 5 मिनट में आई। साहिर सोफे में जाकर बैठ गया। अपनी एक टांग दूसरी टांग के घुटने पर रखकर वो मुसलसल अपना पाँव हिला रहा था। उसे वो दिन याद आया जब वो आगा साईं के कमरे में गया। जब से उसे मोरे ने अपनी ज़िंदगी और घर वालों के बड़ों के सर्द रवैये की हकीकत बताई थी, उसका दिल सबसे ही उचाट हो गया था। मगर उसे हानिम के लिए जाना पड़ा था। अस्सलामुअलैकुम आगा साईं। मीर हाकिम साईं अपने सामने साहिर को देखकर चौंक गए। कैसे आना हुआ साहिर साईं? अपनी हैरानी छुपाते हुए वो बोले। आगा साईं, आप नूरे हरम को फ्रांस भेज रहे हैं और वो भी अकेले? इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है साहिर साईं, इसलिए अच्छा है कि तुम इस मामले से दूर रहो। आगा साईं ने माथे पर बल डाले उसे जतलाया। बेशक आप मुझे अपना खून नहीं मानते, मगर वो हमारे ख़ानदान की इज्जत है। उसे अकेले भेजना सही। हमें अपनी नूरे का ख्याल रखना आता है साहिर साईं, तुम्हें हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कितना ख्याल रख लिया है आपने अपनी नूरे का, वो तो मैंने देख लिया। वो दिल में ही सोच सका, मगर मामला गंभीर था। और वैसे भी वो यहाँ सिर्फ हानिम के लिए ही आया था, इसलिए उनके तंज को खामोशी से बर्दाश्त कर गया। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वो लोग मुझे पेरिस भेज रहे हैं, वहाँ पर रिहाइश के लिए फ़्लैट भी दे रहे हैं। ये उस बिल्डिंग के फ़्लैट का पता। आप मुझ पर नहीं तो आनसा मीर के बेटे पर तो यकीन कर ही सकते हैं कि वो अपने ख़ानदान की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देगा। सीख ना पाया मैं मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए मुझसे। साहिर साईं कहाँ खो गए? चलें? मूंगिया रंग के फ्रॉक पर जिस पर क्रीम कलर के धागे का काम हुआ था, साथ क्रीम कलर का हिजाब लिए वो उसके सामने खड़ी थी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। चलो। साहिर ने जैसे ही हानिम के दरवाजे को लॉक लगाया, उसे याद आया कि हड़बड़ी में वो अपना दरवाज़ा तो खुला ही छोड़ आया है। 1 मिनट, मैं ज़रा अपने फ़्लैट का दरवाज़ा चेक करके आया। वो अपने फ़्लैट को लॉक लगाकर जब नीचे उतरा तो उसे हानिम के साथ एक और लड़का भी खड़ा दिखाई दिया। यकायक साहिर के माथे पर बल पड़े, मुट्ठियाँ भींच गईं। साहिर बड़े बड़े कदम लेता नीचे उतरा। ओह! हानिम की नज़र साहिर पर पड़ी। साहिर, इससे मिलें, ये जैक है। ये धमाके की आवाज़ सुनकर आया हमारे फ्लैट से। साहिर ने सुर्ख सफ़ेद रंगत वाले दुबले पतले लड़के को देखा जो उसी को देख रहा था। यस, आई एम वेरी स्केयर्ड। वर यू बोथ ओके? जैक नज़ाकत से कहता हुआ हानिम की मुस्कुराहट दबाने पर उसे मजबूर कर गया। शुक्रिया मिस्टर जैक, तुम आए, मगर हम ठीक हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। साहिर के शाइस्तगी से अंग्रेज़ी में जैक को जवाब देने पर हानिम ने नज़रें घुमाई। ओह बेबी थैंक्स। ओह बेबी थैंक्स की क्या बात है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। जैक साहिर को आंख मारकर वहां से चला गया, जबकि साहिर और हानिम दोनों हवन्नक बने एक दूसरे को देखते रह गए। फिर बात समझ आने पर हानिम का बुलंद कहकहा गूंजा। हंस हंस कर उसके पेट में दर्द होने लगा। अल्लाह, साहिर साईं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हानिम फिर हंसने लगी। साहिर ने खिजालत से और बेबसी से हानिम को देखा। हानिम, एकदम से हानिम चुप हुई थी। साहिर भी उसके चुप होने पर सीरियस हुआ। अभी आपने क्या कहा मुझे? हानिम ने आंखें छोटी की। क्या कहा अभी आपने? मैंने हानिम कहा था। साहिर को उसके इस तरह देखने की समझ ना आई। ओह माय गॉड, आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, ये तुम वाला दम छल्ला नहीं लगाया। शुक्र अल्लाह तेरा, लगता है पेरिस की हवा आपको रास आ रही है। साहिर उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाते लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, मगर अंदर गर्द की हवाओं ने उसकी मूंछों तले आई हल्की सी मुस्कुराहट देख ली थी। साहिर हानिम को पेरिस के सबसे खूबसूरत हलाल फूड रेस्टोरेंट में लेकर आया। वाह, ये कितना खूबसूरत है और एक्सपेंसिव भी। हानिम ने रेस्टोरेंट की खूबसूरती को सराहा, जबकि यहाँ हर चीज़ ग्लास की थी। साहिर साईं, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, इतने अमीर हैं, कभी अपने पैसों की आइसक्रीम खिलाने का तकल्लुफ़ तो नहीं किया। स्टीक को नाइफ से कट करते हुए हानिम ने कहा, खाते हुए बोलते नहीं हैं। कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते साहिर ने संजीदगी से कहा। हानिम के हाथ थमे थे। हानिम के रुके हाथ देख साहिर ने भी खाने से हाथ पीछे किए। शायद उसे हानिम को नहीं टोकना चाहिए था। अभी वो कुछ बोलता हानिम उससे मुखातिब हुई। आपने कभी बताया नहीं है क्या?
آپ کی ادھر ایک گرل فرینڈ سوری بوائے فرینڈ بھی ہے۔ ساحر نے دیکھا حانم کی آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ ساحر کا ہاتھ بے ساختہ اپنے بالوں کو سیٹ کرنے میں گیا۔ اس بار حانم کی کھلکھلاہٹ کے ساتھ ساحر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا دیا تھا۔